हेलो। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडीजी दिल्ली नेट्स बैच 2017 से 18 डिस्कस करना है। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट है द एलयू factorization methods where a equal to lu, let a equal to 2 2 4 9 equal to L1 1 L, where L equal to L11 0, L21 L22 and U equal to U11 U12 0 and U23 2 3. Consider U11 equal to 1 and U22 equal to 1 and these same, and L11 equal to 0 and L equal to 1 and L22 equal to 1 and equate them. Then multiply them. L11 equal to 0 and L11 and L21 L21 to L22 1 2 and L21, here equate them. L11 equal to 2 and L21 into L and L21 equal to 4 and L11 dot L12 बराबर होगा इक्वल टू 2 थर्ड में है और इसके बराबर ये हो जाएगा यानी 9 एंड देन इक्वेशन सॉल्व. देन फाइंड हुआ U12 इक्वल टू 1 एंड L22 इक्वल टू 5. L इक्वल टू फाइंड सो L इक्वल टू 2 4 0 5 and U इक्वल टू 1 1 0 1. Then second is the Gauss elimination method, is also called second iteration value of z by Gauss elimination method. Here example में है let 10x plus y plus z equal to 12, 2x plus 10y plus z equal to 13 and x plus y plus 5z equal to 7. इसमें क्या करना, तीनों इक्वेशन में x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू और यहाँ से z का वैल्यू. तो x इक्वल टू सबको इधर ले गए 12 माइनस y एंड माइनस z एंड y इक्वल टू 13 माइनस z माइनस 2x बाई 10 एंड z इक्वल टू 7 माइनस x माइनस y equal to divided by 5, this 5, and put the initial value 0, y equal to 0 and z equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. Then find the x value which is 1.2 and put x equal to 0 and z equal to 0 in this, y equal to 1.3 and put x equal to 0 and y equal to 0 in equation third, then z equal to 1.4 and second iterative, this is the first iterative, and put for x value find y equal to 1.3 and z equal to 1.4, then find the x equal to 0.93 in equation 1 and then put equal to x equal to here 1.12 and z equal to 1.14, then find the y equal to, we get y equal to 0.92 from equation 2 and the put x equal to 1.2, y equal to 1.3, then we get z equal to 0.90 from equation third. This is the Gauss elimination methods.
फर्स्ट में पुट इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, एंड देन जो वैल्यू x y z में आएगा उसे अगले स्टेप में पुट करेंगे। सेकेंड इटरेशन गॉस अलग मेथड है, गॉस सैडल मेथड, एंड सेकेंड इटरेटिव वैल्यू ऑफ z बाय गॉस सैडल मेथड। एग्जाम्पल है 30x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 75x प्लस 17y माइनस 2z इक्वल टू 48 एंड 2x प्लस 2y प्लस 18z इक्वल टू 30। इन दिस x इक्वल टू वैल्यू इतना आया, y इक्वल टू 48x माइनस 2z प्लस 17 एंड 30 माइनस 2x माइनस 2y बाई 18। Put y equal to 0 and z equal to 0 in equation first, then get the value x equal to 2.5 from equation 1, पहला इक्वेशन से, and then x equal to 2.4 this value and y equal to and z equal to 0, then find the value of y। फर्स्ट इटरेशन चल रहा है, and put x equal to 2.5 and y equal to this value 2.67, then find the value of, we get value of z equal to 1.09. This is the x by z value of the first iteration. In second iteration, put y equal to 2.261 and z equal to 1.19, then x value equal to 2.568 and put x equal to 2.508 and z equal to 1.09, then y equal to, we get y equal to 2.808 and put x equal to 2.568 and y equal to 2.8008 this value, then get z equal to n. And third is न्यूटन्स बाइसेक्शन मेथड। इस मेथड में क्या कहता है कि द इटरेशन फार्मूला इज x इक्वल टू a प्लस b बाई 2 वेयर a इन दिस इक्वेशन f फंक्शन ऑफ f ऑफ a डॉट f ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड द मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन आर गिवन बाय द mod b माइनस a बटा 2 to the power n less than epsilon, where a equal to lower limit of the interval, b is the upper limit of the interval, and n equal to number of iteration and e equal to error of approximation, and false position methods। इसमें इटरेशन फार्मूला है a इंटू f ऑफ b माइनस b इंटू f ऑफ a बटा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, where f of a dot f of b equal to 0। इसको कैसे लिखते हैं कि x लिख देंगे इसमें f of b एंड सेकेंड मेथड क्या होता है, द इटरेशन फार्मूला इज x i प्लस 1 इक्वल टू x i माइनस 1 f ऑफ xi minus xi plus f equal to xi minus 1 equal to fxi minus fxi minus 1, and third is the Raphson methods। and the iteration formula is xi plus 1 equal to xi minus f of xi bata f dash xi, where I equal to 0 1 2 3, start from 0। here x1 फाइंड करना है, I equal to 0 ले लेते हैं, तो x1 equal to I के वैल्यू 0, x of 0 and f of x of 0 and f dash x of 0। क्या होगा, x0 इनिशियल वैल्यू जितना होगा उसको रखेंगे, माइनस करेंगे, इनिशियल वैल्यू रखकर जो फंक्शन में जो वैल्यू आएगा वहाँ रखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर x के वैल्यू इनिशियल वैल्यू रखेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे। इसी प्रकार x2 इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1
बटा एफ डैश x1। सम नोट्स है, मेथड है बाइसेक्शन मेथड, स्पीड क्या है, स्लोवर है, मेथड क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस है 1, नंबर ऑफ गैसेज है 2, टाइप्स क्या है, क्लोज इंडेड है, फोर्स पोजीशन मेथड लोअर, स्पीड है लोअर, कन्वर्ज से भी करेगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, नंबर ऑफ गैसेज इज 2, so 2 and close ended। थर्ड इज द सेकेंड मेथड, स्पीड है मीडियम, मे और मे नॉट बी कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करेगा ये और नहीं भी कर सकता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्ज 1.2662 एंड नंबर ऑफ गैसेस 2, ओपन इंडेड। सेकेंड न्यूटन रैप्सन मेथड है फास्टर, मे और मे नॉट बी कन्वर्ज, इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्ज है 2 है, नंबर ऑफ गैसेस 2 है, ओपन इंडेड है। एरर एट द प्रेजेंट इटरेशन इज स्क्वायर ऑफ एरर एट द प्रीवियस इटरेशन। गेट 2017 में पूछा है, द एरर एट प्रेजेंट इटरेशन इज स्क्वायर ऑफ द एरर एट प्रीवियस इटरेशन। एक क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन बाइसेक्शन मेथड इज इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम इतना in the range of 1 and 2 so that error equal less than 10 to the power minus 3 r। तो नंबर ऑफ इटरेशन निकालना है, क्या दिया हुआ, a दिया हुआ है एंड b दिया हुआ है 2 है, एरर दिया हुआ 10 to the power minus n है, n निकालना है। फॉर्मूला में क्या होता है कि mod of b minus a बटा 2 to the power n इज लेस देन एरर्स, यानी वैल्यू रख देंगे 2 - 1 बटा 2 के पावर n बटा लेस देन 10 टू द पावर -3, इसको 2 - 1 गया 1 बचा 2 के पावर n 10 टू द पावर -3 एंड 1/2 के पावर n बटा 1/10 टू द पावर 3 एंड देन 2 टू द पावर n इक्वल टू 10 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर n इक्वल टू 1000 एंड द n ln2 इक्वल टू ln10 3 ln and then value equal to 9.96 which is equal to 10। तो नंबर ऑफ इटरेशन कितना होगा, 10 इटरेशन। जब एरर इतना होगा और इसकी वैल्यू इतना कितना बीच होगी, 1 और 2 के बीच होगी, द नंबर ऑफ इटरेशन कितना निकलेगा, 10। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वैल्यू निकालना है क्वार्टिट दिस इक्वेशन का, एक्स क्यू बट -4x - 9 इक्वल टू 0 × 3 बाय बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में फाइंड द बिटवीन ए एंड बी, मतलब जो एक ले लेंगे वो ए ले लेंगे यहाँ और बी ले लेंगे टोटल 3, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू -4x - 9, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू इक्वल टू 0। ए और बी का वैल्यू देना है, ए और बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो -9 आया और बी का वैल्यू किए तो 6 आया। यदि वैल्यू माइनस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आता है तो इसके बीच में इसका वैल्यू लाइज करेगा, यानी इसकी वैल्यू कितना होगा, तो 2 + 3/2 इक्वल टू 2.5, और देन पुट करेंगे 2.5 वैल्यू इन एफ ऑफ एक्स में, देन कितना आया, माइनस निगेटिव वैल्यू आया। देन सेकेंड मेथड से निगेटिव वैल्यू आया, मतलब ये साइड निगेटिव है ये साइड पॉजिटिव है, यानी 2 और 2 3 के बीच में आया, निगेटिव वाला साइड में आया है, यानी 2 और 2.5 के -3। तो वैल्यू कहाँ आया, निगेटिव आया तो इधर आया, सॉरी निगेटिव, तो
2.75 इसके बीच, देन 2.7 भी पॉजिटिव आया तो 2.75 और 5 के बीच आया, यानी इस वाला वैल्यू में आया। तो 2.5 और 2.75 क्यूब प्लस करेंगे जोड़ के और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.625। दिस इज द थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन कितना होगा 2.625 आंसर बाय सेक्शन मेथड। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2x माइनस log 10 base 10 x minus 7 equal to 0 in the range of 3 and 4 by false position method। बाय false position method से निकालना है तो फंक्शन को मान लेंगे f(x) equal to 2x माइनस log 10 x minus 7, यार a equal to 3 और b equal to 4 दिया हुआ है, दिस a and b। f of 3 निकालेंगे, a का वैल्यू एंड b का वैल्यू। f of 3 में निगेटिव वैल्यू आया है, f of 4 में पॉजिटिव आया है। तो f of a इक्वल टू होता है f of b माइनस b इंटू f of a बटा f of b माइनस f of a। देन वैल्यू कैलकुलेट किया तो आया 3.3785 विच इज पॉजिटिव वैल्यू। 3 और 4 के बीच था, यहाँ आया था इन दिस केस पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ आया तो 3.78 फर्स्ट एंड 3.78 नेगेटिव वैल्यू मीन्स दिस। तो रूट्स लाइज बिटवीन 3.78 and 4 of a equal to 3.787 and b equal to 4, then second approximation find this 7.789। this is the question। थर्ड है the quadratic equations x square minus 4x plus 4 equal to 0 is to be solved numerically starting with the initial guesses x not equal to x initial equal x 0 equal to 3 and Newton's Raphson method is applied once to get a new estimated, and the second method is applied once using with initial guesses and new estimated। The value of the roots after the application of the second method is what? फंक्शन दिया हुआ f of x इक्वल टू इतना, f डैश x निकालेंगे, f of इनिशियल वैल्यू जो दिया हुआ था 3 इक्वल टू 1 और f डैश 3 इक्वल टू 2 आया। बाय न्यूटन रैप्सन मेथड x1 इक्वल टू x नोट इक्वल टू f of x नोट प्लस बटा f डैश x नोट इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, x नोट इक्वल टू दिया हुआ था 3, इसमें f of x निकाले 1 और f of x इक्वल टू 2 डिवाइड किए 2.25 आया। x1 इक्वल टू 25, x नोट 0.3 दिया हुआ था, x1 इक्वल टू इतना, x1 इक्वल टू 2.5, देन f x1 इक्वल टू निकालेंगे 0.25 एंड देन सेकेंड मेथड से निकाले x i प्लस 1 इक्वल टू x i माइनस 1 f of x i माइनस x i f of x i माइनस 1 f of x i माइनस f of x i माइनस 1 इक्वल टू x2 निकालेंगे f x s नोट f x1 माइनस x1 f x नोट and f x1 minus f x नोट, and this value put this is value, then find the value x2 equal to 2.83 answer। these all are गेट क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चन है वो गेट का क्वेश्चन है। थर्ड इज द न्यूटन्स रैप्सन इटरेशन फार्मूला x इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। न्यूटन्स रैप्सन इटरेशन फार्मूला लिखना है जिस जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 9, f डैश x निकालेंगे माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर।
फार्मूला होता है एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ डैश एक्स आई इसको यहाँ से पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स वन एंड यहाँ से ये पुट कर देंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कट जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2xi माइनस 9x²। तो एक्स आई इक्वल टू 2। दीज इक्वेशन फाइंड करना था, फार्मूला फाइंड करना था, क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर। कंसीडर द सीरीज xn प्लस 1 इक्वल टू xn बाई 2 प्लस 9 8xn इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0.5 obtained by the Newton's reaction method, the series converges to। तो कितना आने के बाद लगभग वैल्यू सेम आने लगा। तो x1 इक्वल टू एक्स नोट बाई 2 प्लस 9 बाई 8 x1 x0 पुट करेंगे 0.5 तो वैल्यू इतना आएगा, और ये 1 का वैल्यू पुट करेंगे इसमें देन इतना आएगा, और इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इतना आएगा 1.5 यहाँ पुट करेंगे तो इतना आएगा, ये फिर इतना पुट करेंगे तो ये इतना आएगा, लगभग सेम आने लगा, यानी रूट्स ईच 1.5 आंसर हो जाएगा रूट्स ईच